यहाँ कौन किस नुक्ते को देख रहा है, डोंट नो। चाहे MD कैट की तैयारी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत, हर ख्वाब को मिलेगा अब एक नया रास्ता। फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस, प्रोफेशनल माहौल और बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म और कामयाबी पर पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुस्तनद सर्टिफिकेट्स। जो आप बोल रहे हैं वो नीचे सबटाइटल में आ रहा है। ये है मुस्तकबिल की शुरुआत। वो बच्चों को वो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश भी उर्दू में पढ़ा। रुको नहीं, आगे बढ़ो। आप देखो हमारे देसी टीचर देखो, 90% वो बोर्ड भरा हुआ होगा और उर्दू में तालीम तरक्की की बुनियाद है और अब एक इनकलाबी कदम। टाइमर ना चले बेनजीर बनो। 6 माह 1 लाख तलबा, सर देखें सही खड़ा हूं मैं। मुफ्त तालीम। चाहे MD कैट की तैयारी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत, हर ख्वाब को मिलेगा अब एक नया रास्ता। फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस, प्रोफेशनल माहौल और बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म और कामयाबी पर पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुस्तनद सर्टिफिकेट्स। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये है मुस्तकबिल की शुरुआत। रुको नहीं, आगे बढ़ो, बेनजीर बनो। Assalamu alaikum students, welcome to Benazir Bano program. You are connect to Benazir Bano program today. Today's our second lecture and I hope you are doing well. Okay, let's start our lecture today. As we discussed yesterday, covering letter and CV. This is the really important question, 10 marks question from section C, and I already discussed and I already in detailed in 2 days model paper as well. Okay, timely I will again revise the model paper, but today we are going to continue our class. It's connected to from yesterday lecture. Okay, so let me just start from covering letter which we discussed yesterday, but I just give you some little bit revision, and then after 2 to 3 minutes I'll start the curriculum vitae CV. First of all, we just have a look about the covering letter. A covering letter is one-page document that's submitted as a part of your job application alongside your resume. Always covering letter हम CV के साथ जो है send करते हैं, email करते हैं या post करते हैं company को. This is really most important part to, if you want to apply any job, any post. Okay, that's brilliant. Okay, main purpose to introduce yourself to the employer, to explain interesting in job and to highlight your relevant skills and educations. Okay, to persuade the employer to read your CV. Okay, this is basically persuasive letter. Okay, so I have discussed in detail yesterday, so let's move on to the next topic. The next topic is, we have discussed the sentences as well, and I just mentioned and I showed you the one of the sample letter as well. Let me read again, because yesterday it was the last minutes and I could not explain it in detail. So let's have a look the sample of the covering letter. Okay, dear HR manager, and you will write down the address there. Okay, there is the address of the address. Okay, you will mention the address in the postal address, and I'm writing to apply for the position of software engineer. Okay, this is any of the post they can give you in the exam, but you just need to understand the structure, the writing, and the how they start the covering letter. Okay, then next para, during my studies I developed basic skills in computer programming, problem solving. Basically this is connect to the software engineer. I've discussed yesterday already. Okay, another covering letter we have, that is from your model paper. Okay, might be it would be in your exam, so let's discuss this today and then we will continue the CV. Dear HR manager, basically most of the companies HR department stands for human resource departments. They deal all the
these types of, like they accept the applications, CVs, covering letters, and hiring and firing, all the procedure of the employment they deal. Okay, I'm writing to apply for the position of, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है कि स्टार्टअप आप इसी से लें कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई, यानी आपका व्हाट इज व्हाई यू आर राइटिंग, आपका रीजन क्या है, तो स्टार्टअप भी आपको ऐसे ही लेना है। आई एम राइटिंग, जैसे हम एप्लीकेशंस में लिखते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो एप्लीकेशन का अलग पैटर्न होता है, लेटर एक अलग होता है, और प्रोफेशनल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स में हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है। ओके, तो लेट्स सी, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ डेटा साइंटिस्ट इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी अच्छी आप वोकैबुलरी यूज करेंगे, जितना अच्छा आपका मैटर होगा, यू वुड गेट द गुड मार्क्स। ओके, इंग्लिश में यही इशू होता है, बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे, माई स्टूडेंट्स एज वेल, के सर हमने पूरा अटेम्प्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग वी attempt, and but we did not get the good marks and we did not obtain the highest marks. Okay, the problem is the vocabulary, the structure, composition, and grammar. These three problems. Then writing is the most important. Literature is a bit difficult. If you are not used to for that, you are not in practice in reading and writing, तो it would be really difficult for you. देखें, अगर हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं और हम चाहे तो ये 2-3 कवरिंग लेटर के आप पैटर्न रट लें और लिख लें, बट ये टाइम बीइंग तो आपको फायदा देगा, बट लॉन्ग टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट अ कवर लेटर। तो जस्ट ये आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, तो इसकी ज़रा हम देख लेते हैं कि इसमें एक 12th ग्रेड का स्टूडेंट्स है, लेकिन इसमें बैचलर भी हो सकता है। तो इंटरमीडिएट क्लास फोकस ऑन कंप्यूटर साइंस एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिस्ट and then data analysis and technology. Okay, during my studies I developed a strong interest in data handling, यानी कि वो ड्यूरिंग अपनी स्टडीज़ में भी वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहा और उसने सारा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके अंदर इससे रिलेटेड जो डेटा है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसकी सारी जो फंडामेंटल है और सारी चीज़ों को उसने बेसिक चीज़ों को सीखा है, और वो एज़ा जो है उन्होंने डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स पर भी काम किया है। तो this is the for the this cover letter it's connect to the data scientist anyway might इधर यहाँ जैसे it's mention कि ये क्लास 12 है, तो ये बैचलर्स किया हुआ बंदा जो प्रोफेशनल है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो I will show you the later on the rest of other covering letters. Okay, let me show you the pattern of CV. Okay, okay, let's have a look. CV and resume, ये एक ही नाम है। CV stands for curriculum vitae और ये एक लैटिन वर्ड है, और अभी मोस्ट ऑफ द पीपल उनको ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनसे आप CV क्लियरली बना सकते हैं, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक अ CV, हाउ टू ड्राफ्ट अ CV. तो लेट्स सी, this is a like for the sample Ahmad Ali, any of the name like your name you can write down. तो this is a sample, यानी कि name of the candidate, यहाँ applicant का नाम आएगा, और as you see that के CV में अब हम पिक्चर भी देते हैं according to your text book, उसमें पिक्चर नहीं है तो you can't mention the picture, but if you can it would be good. Okay, then I just mentioned name and contact information. Okay, CV, there are so many patterns you will find on internet, on social media and different websites. You can get so many design templates, but design templates अलग चीज़ है। अभी I am just going to discuss the CV, how to draft a CV, what are the important things which really need to mention in CV. तो अभी हमें CV का सिर्फ सैम्पल उसका पैटर्न और उसका टेम्पलेट हमें डिस्कस करना है कि CV के अंदर क्या क्या चीज़ें एडअप करनी है, और वही हमारे दिस इज पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। एडवांस हो गई है बहुत लाइफ, दुनिया हर चीज़ हमें रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन आपका सिलेबस डिमांड करता है कि आपको CV ड्राफ्ट करना है, और दे विल गिव यू द डिफरेंट लाइक पोस्ट लाइक अकाउंटेंट, लेक्चरर, internship, and then doctor, advocate,
data scientist, software engineer. So you learn the pattern. Once you learn the sample and how to make a CV, how to draft CV, so you can add up a different degrees according to the demand जो आपके क्वेश्चंस में आएगा कि आपको किस जो है डेजिग्नेशन की है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो सीवी को उसी से ही डिज़ाइन करना है. यू वुड डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट. जो उस पोस्ट की डिमांड है वही डिग्रीज ऐड करनी है. तो सीवी भी आप रट नहीं सकते, उसको रट्टा नहीं लगा सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस फील्ड में कौन सी डिग्री, कौन सा प्रोफेशनल डिग्री, कौन सी एजुकेशन, कौन सी डिग्रीज और कौन सी सर्टिफिकेशन और कौन सा एक्सपीरियंस जो है वो डिमांड है और उसकी नीड है, तो वही हमें इस सीवी में ऐड करना है. तो लेट्स हैव अ लुक द सैंपल ऑफ द सीवी. एज यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड राइट द नेम ऑफ द एप्लीकेंट हेयर. एक नाम लिख देंगे, सही है. और उसके बाद पहले जो होता था सीवी में, उसमें ऊपर लिखा होता था करिकुलम वाइटाe और नाम यहाँ आता था. लेकिन अब या तो आप नाम के नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दें, जिसमें योर ईमेल आईडी, okay, your WhatsApp number and your postal address. These are three things you can write down under your the name. और name हमेशा centralize होगा और right on the right deep आपकी पिक्चर आएगी. ओके, अब मैंने नाम के आगे, क्योंकि ये एक सैम्पल सीवी है, तो मैंने अच्छा एक ये तरीका है कि नाम के नीचे आप लिख दें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर देयर इज एन अदर ऑप्शन यू हैव. what the option you have कि you can mention your personal information like this. According to your textbook, आपका जो CV का पैटर्न है वो इस तरह है कि आपकी हेडिंग, अच्छा you can write the personal information or personal details, both are same, there is no difference. Okay, so don't worry about that, don't get confused. You will have the so many patterns and templates of CV, but you just need to know basically how to start and how to draft and what I need to add up according to the post. So today I am going to discuss in detail about the CV कि CV का पैटर्न कैसा होना चाहिए, CV में कौन सी हेडिंग्स आती हैं और किस हेडिंग में क्या क्या डिटेल्स आती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन. पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन इफ़ यू आर अप्लाइंग डोमेस्टिक लाइक इन योर कंट्री, अपने मुल्क में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो यू वुड हैव टू मेंशन योर NIC, your religious status, your marital status. Most of the jobs they demands the unmarried, most of the jobs they demand married, so it's depend, but I did not mention it. I just mentioned the proper, like the thing like father's name, your name is there, applicant name is there, father name, then date of birth. Shortly we write down DOB, D.O.B. Okay, CNIC and bay form, sorry, CNIC and bay form is really compulsory. Bay form, if some of the people they got some issues, so they are too young or they are going to apply internship, so they mention the bay form number as well, but CNIC number is compulsory. Address, you have to mention the address there. I just write down Karachi, Pakistan, but your postal address would be mentioned there. Okay, your postal address would be mentioned. Next, email ID, correct email ID, correct contact number. Contact number, most of this people they know, the companies and the company's official, they get connected via WhatsApp, so you need to mention the WhatsApp number. Okay, next, this is the most important part of your CV. What is that? This is your summary objective, what we call summary or objective. This is really important thing. I highlighted it, and some of the people, some of the students they got confused. They got confused basically how to write objective or summary. Objective and summary mean this is the matter you just need to tell the company I will share my expertise and I'm willing to do this job and I'm really enthusiastic and I'm really fit for this job. This is really 2 to 3 lines you need to write down. What you mention in there, to work in dynamic and cooperative environment. आपको क्या बताना है कि मैं ऐसी इन्वायरमेंट से काम करके आया हूँ और मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए. टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. और क्या करने के लिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अपनी प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. आपका एक बड़ा सेटअप है, वेल एस्टीम्ड, योर कंपनी इज एस्टीम्ड, वेल नोन एंड रेप्यूटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उससे और सीखने को मिलेगा और एक बड़े सेटअप के अंडर में काम करूँगा. तो व्हाट वुड यू मेंशन इन देयर, ये मैं कीज बता रहा हूँ कि आपको ये आपको लिखना नहीं है. बेसिकली
ये की पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्टिव और समरी को तैयार करना है. आई विल शो यू द सैंपल ऑफ समरी एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल. ओके, टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. यानी कि मैं इसलिए भी आपकी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूं कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं नई नॉलेज और नए एरिया ऑफ अपने एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता हूं. अच्छा, अब एक मैटर है जो मैंने यहाँ दिया है, वो लेट्स हैव अ लुक. Results driven and motivated manager with, okay, this is basically not there. Okay, let's have a look about, okay, I'll show you the sample CV as well. This is basically the pattern. So let's discuss the pattern first, then I'll show you the some of the CVs. Okay, then after personal information and personal detail, the most important thing, your educational background, what we call education. Shortly you can mention education. First of all, in the middle you will write your name, then after name you can under your name in the centralized you will write down email ID, WhatsApp number and your postal address. That is one pattern. Another pattern is you just mention your name and you will give the headings, personal information or personal details, and you will write down some of the things like your father name, your name is already mentioned, your father name, your date of birth, your CNIC number, your postal address, your WhatsApp number, your email ID. These details you can give and you can mention under personal information. Next, एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कहते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज, देयर आर सो मेनी हेडिंग्स एंड सो मेनी वर्ड्स यूज फॉर द एजुकेशन. एजुकेशन इज फाइन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज फाइन एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड इज ओके. तो इट्स अप टू यू which one you really it's look good. But I given you a border as well on the CV. So if you have the page of your examination answer sheet, so you can properly make a one border and it will look nice. Okay, because decoration और pattern के भी marks हैं CV में. 5 marks की आपको CV आएगी, 5 marks का covering letter है. Covering letter we discussed yesterday in detail. Today we will discuss the CV. ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड में अब हमें एक हिरार्की है कि हमें बॉटम टू टॉप जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसान जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले अपना एक पहला स्टेप कवर करता है, वो होता है मैट्रिकुलेशन. तो इन्होंने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ साइंस. इफ योर कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स, अगर कोई BBA चाहिए, किसी को अकाउंटेंट चाहिए, या किसी को HR मैनेजर, डिप्टी HR चाहिए, या किसी को किसी कंपनी का फ्लोर मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, तो डेफिनेटली या मैट्रिकुलेशन इन कॉमर्स आएगा. तो इट्स नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस CV. बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एडअप करना है. अगर उसकी डिमांड है उस कंपनी की कि हमें मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, हमें कोई जो है ना कस्टमर सर्विस असिस्टेंट चाहिए, हमें डिप्टी HR चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए, या हमें कोई पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक जो है मार्केटिंग का बंदा चाहिए, तो उसके लिए फिर उसका बैकग्राउंड कॉमर्स में आएगा. उसी तरह अकाउंटेंट चाहिए, तो आपको पता है डेफिनेटली जो हाईएस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ACCA है. तो ये डिग्रीज हैं, ये सर्टिफिकेशंस हैं. ओके, तो मैट्रिकुलेशन इन साइंस, जब आपको अकाउंटेंट मांगेंगे तो आप इधर कॉमर्स लिख दीजिएगा. तो दिस इज नॉट फिक्स्ड. फिर आपने बोर्ड लिखना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए. कोटा सिस्टम भी होता है, और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है कि जिनकी फ्रेंचाइज पाकिस्तान के हर शहर में है, और उनकी जो है सेटअप हर शहर में है. तो फिर वो अपना लिखेंगे किस बोर्ड से किया है. हमारे यहाँ बहुत सारे बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, आखान बोर्ड है, कराची बोर्ड. तो ये BSE की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मेंशन किया है. ईयर जरूर मेंशन करना है कि किस ईयर में आपने ये किया है. और ग्रेड बहुत सारे अभी दे डोंट डिमांड द ग्रेड, बेसिकली देयर इज द इंटरव्यू एज वेल एंड देयर सम ऑफ द टेस्ट एज वेल. तो यू डोंट नीड टू मेंशन, बट योर CV look nice if you mention the grade. Next, intermediate, pre-engineering, pre-medical and commerce. तो आप इन तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट के उन्होंने कौन सी ड्राफ्ट करने को कहा, CV किस पोस्ट के लिए कहा है. ओके, देन बैचलर्स डिग्री. अभी मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटीज ऑनर्स ही कराती हैं, BBA, BS किसी भी सब्जेक्ट्स में, किसी भी फील्ड में. तो BS ऑनर्स मेंशन कीजिएगा या BBA कीजिएगा, और फिर उसके बाद मास्टर्स. तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स एंड मास्टर्स, तो यूं डिग्रीज ऑनवर्ड्स आपकी कंटिन्यू चलेंगी. अच्छा, फर्स्ट हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके अंदर आप अपना पर्सनल डिटेल देनी है. सेकंड हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया. देन थर्ड हेडिंग इज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस.
ओके, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या होता है? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जो कहीं आपने सर्व किया होता है एज अ एम्प्लॉई. You have been working somewhere else, you had been working, you used to work there. तो वो लिखना है कि अगर आप करंटली कर रहे हो तो आप क्या लिखेंगे? I have been working since या 4 years में या फिर सन में I have been working in this and this, यानी कि इस कंपनी में एज और इस कंपनी में. सही है. एज क्या है? एज मैनेजर, एज मार्केटिंग मैनेजर, एज अकाउंटेंट, एज लेक्चरर, एज any of the job, as doctor, as engineer, as supervisor, as civil engineer. So which any of the job you have done in previous in your background, तो then you mention it. Okay, year mention करेंगे और हाँ where, कहाँ, कब और क्या, यानी कहाँ, कब और क्या, ये 3 चीजें याद रखें. कहाँ जॉब की, किस सन में की, अगर कर रहे हैं तो जारी है, और क्या किया, एजा क्या थे आप. तो अगर 3 बार आपने 3 जॉब्स की हैं माजी में, यानी पास्ट में यू हैव डन 3 ऑफ द जॉब्स एंड स्विच्ड इट, तो आप उन तीनों कंपनीज को स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे. सबसे पहले स्टार्टिंग में लेट्स सपोज ये 2026 चल रहा है, तो आपने 2021 में की, तो पहले वो जॉब मेंशन करेंगे, फिर मोस्ट रीसेंट पहले मेंशन करेंगे जो अभी करंटली आप कर रहे हैं. तो 2025 की जॉब आएगी जो अभी ऑनवर्ड कंटिन्यू है, फिर उसके बाद 24 की. तो यूं करके आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शो करना है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वही है जो इंसान कहीं भी जॉब करता है, कहीं भी किसी कंपनी में सर्व करता है. अच्छा, अब आ गए स्किल्स. अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट थिंक व्हाई वी आर मेंशनिंग स्किल्स इन सीवी, बट दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि इंसान और मशीन में ये फर्क होता है कि इंसान जो लीडर होता है वो काम करवाता है, वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है. मशीन कम्युनिकेट नहीं करती, मशीन को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वही करता है. और एक ऐसा लीडर जिसको कोई एक अच्छे डेजिग्नेशन की जॉब चाहिए, तो उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स होने चाहिए. व्हाट आर दी सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स? लाइक योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, यू आर एक्टिव लर्नर, you are self motivated, okay, you are quick learner, you are self motivated, you are polite, you are humble, you are honest. कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिनकी डिमांड होती है कि आपको उसमें ऑनेस्टी चाहिए, और उसके अलावा आपने इस स्किल्स में आपके हार्ड स्किल्स, लेट सपोज एक हार्ड स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स में आपके क्या आएंगे? जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कोई ऐसी एक्टिविटीज है जो आपकी एकेडमिक के अलावा की हैं, लेट सपोज उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी, आपकी लैंग्वेजेस, कि आपने कौन कौन सी ज़बानें आती हैं, आपके कंप्यूटर स्किल्स आ जाएंगे, आपके कोई और स्किल्स हैं उस फील्ड के मुताबिक, कहीं आपने जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं, पहले किसी ज़माने में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड चलता था, अब कंप्यूटर लिटरेसी मांगते हैं, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग मांगते हैं, और अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं स्किल्स में, तो ये बहुत ज़रूरी है. ओके, लैंग्वेज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एट एनी जॉब, क्योंकि हर बड़ी कंपनी मांगती है कि यू शुड नो द मोस्ट ऑफ द 3 और 4 लैंग्वेजेस, बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ मार्केटिंग मैनेजर को इलाकाई ज़बान बोलनी पड़ती है, तो सम ऑफ द जॉब्स पर्टिकुलरली डिमांडेड द पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो इफ यू वुड मेंशन द लैंग्वेजेस, तो इट वुड रियली फ्रूटफुल फॉर यू. ओके, स्किल्स के बाद आ गया अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स. क्या आपको कहीं अपनी कंपनी में माजी में कोई अवार्ड्स मिला है? कोई आपको बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला है, या किसी परफॉर्मेंस पे आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ मिला है कि आप बहुत अच्छे जो है कैप्टन थे क्रिकेट की टीम में, या फिर आप बहुत अच्छे जो है ना स्पीकर थे, डिबेटर थे, डिक्लेमेशन करते थे? तो दीज आर द थिंग्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एनी जॉब. एंड देन इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंस. मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे वांट एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस. जैसे कुछ ऐसी जिम्मेदाराना जॉब्स होती हैं जिनमें बंदा भी रिस्पॉन्सिबल चाहिए, तो रेफरेंसेस मांगते हैं, तो उस पर आपने मेंशन करना है रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट. क्या होगा? रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट. ओके, लेट्स हैव द क्विक रिवीजन. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, you mention the name in the center of your CV, and right on the deep you will show the picture, like picture frame. And then the first heading would be professional, personal detail or personal information. Any of the heading you can mention it. Summary, objective, इसमें से भी एक डाल दीजिएगा summary. Okay, and then education, educational background, educational qualification हो जाएगी आपकी. And then you have skills and
स्किल्स के बाद आपके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, एंड देन लेट्स हैव अ लुक एन अदर सीवी। ओके, ये सीवी जो डिजाइन की हुई है ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सीवी। अब आपको इस तरह कई सीवीज को रिव्यू करना होगा। वो जो सीवी थी वो एक सैंपल था और ये जो सीवी है ये एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए डिजाइन की गई है। तो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स सी कि व्हाट वुड वी कैन ऐड इन दैट सीवी। करिकुलम विटाए, तो अब जहां ये करिकुलम विटाए लिखा हुआ है आप सेंटर में नाम मेंशन कर देंगे, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर सीवी जो है इस तरह चलती हैं कि उसमें एड्रेस, कॉन्टैक्ट और रिलीजियन, नेशनलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आता है, क्योंकि सम ऑफ द जॉब्स दे डिमांड द नेशनलिटी एज वेल। अच्छा, अब ये एक 2-3 लाइन का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट। टू ऑब्टेन अ पोजीशन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ रेप्यूटेबल मल्टीनेशनल। उनका क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद क्या है उनका, कि एक ऐसी पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हासिल करना एक जानी पहचानी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, वेयर आई कैन अप्लाई माई नॉलेज, एनहांस माई स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ओके, गॉट इट। क्या हुआ, हमें सिर्फ 2-3 लाइंस लिखनी है कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू अप्लाई दिस जॉब। तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाने, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है और आप जैसी जानी पहचानी कंपनी में मैं एक पोजीशन हासिल करना चाहता हूं, जिससे मैं भी, इसमें आप ये सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं कि आई वुड शेयर माय एक्सपीरियंस, माय एक्सपर्टाइज एंड माय प्रीवियस एक्सपीरियंस आई वुड शेयर एंड आई वुड वर्क एज अ टीम लीडर, एज अ मोटिवेशनल पर्सन। तो इस तरह आपने इसको करना है और देयर आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट जॉब्स। तो ये बड़ा सिंपल एंड कंसाइज है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गई। अब इसमें देखें यहाँ आ जाएगा BCSC, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, BCSC। ओके, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, ये यूनिका नाम आएगा आगे और एयर आ जाएगा कि भाई हमने इस सन में किया है। तो बेसिकली ये इंटरमीडिएट के लिए डिज़ाइन थी, लेकिन हमें मोस्टली बैचलर्स भी मेंशन करना है। आई गॉट सम ऑफ द सीवीज एज वेल, तो आई वुड शेयर यू लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैचलर, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया होगा या IT के कोर्सेज किए होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के, सही है, मुख्तलिफ वो IT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स किए होंगे, सही है। ओके, हियर ओके, तो यू हैव टू मेंशन टिल बैचलर। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी ने हायर करना है तो यू हैव टू मेंशन द बैचलर डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एंड एयर याद करना है। और यहाँ पर आपने ये अपने आप को पास्ड मेंशन करना है। ये थोड़ी सी अपग्रेड होनी है तो यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट। और यहाँ भी आपका GP आ जाएगा, जो भी है आपका। ओके जी, लेट्स फाइन। नेक्स्ट, स्किल्स। अब मैंने ऊपर आपको सिर्फ स्किल्स समझाए थे, अब स्किल्स आ गए। दीज स्किल्स आर कनेक्टेड टू एज अ सॉफ्टवेयर पोस्ट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो स्किल्स हैं वो मेंशन्ड है। अब उसमें स्किल्स उसको क्या क्या आ रहे हैं, जिसके लिए कंपनी की डिमांड है, वो है बेसिक प्रोग्रामिंग इन C++, एक लैंग्वेज है, उसकी प्रोग्रामिंग है। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं। उसके अलावा पाइथन है, फ्लटर है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन पर दुनिया में लोग काम कर रहे हैं। तो उसको यू कैन मेंशन अवर हियर एज वेल, बिकॉज इफ यू हैव डन बैचलर्स। ओके जी, एक्सपीरियंस यहाँ पर फ्रेशर है, लेकिन वी वुड मेंशन द एक्सपीरियंस एज वेल। फिर लैंग्वेज आ गई, फिर इसमें पार्टिसिपेशन आ गई। अच्छा जी, एक और CV है, लेट्स हैव अ लुक। इसमें देखें यूं दिया हुआ है सारा, जॉब टाइटल, कंपनी की अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने कहा ना क्या आ जाएगा अचीवमेंट्स में, आपकी जितने भी अचीवमेंट्स हैं कंपनी में, क्या क्या आपने किया है। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा जी, ये देखें स्किल्स में क्या आ गया, मैंने बताया था ना, you would mention your soft skills and hard skills। तो good communication skills, basic computer knowledge, ये आपके skills का हिस्सा है। टीम वर्क एंड लीडरशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी बंदा एज ए इंडिविजुअल कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता,
वो कंपनी में एज अ टीम मेंबर अच्छा टीम मेंबर बनता है, फिर वो टीम मेंबर से आगे उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। जब तक आप अपने करीबी और सराउंडिंग के लोगों को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो यू कान रन एंड यू कान सुपरवाइज द पीपल। ओके, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है कि हम पंक्चुअल नहीं हैं, हम पाबंद नहीं हैं, हम टाइम पर नहीं होते, तो वी हैव टू रियली केयर अबाउट तो टाइम मैनेजमेंट, दीज आर द स्किल्स एज वेल। तो आप स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं, आई एम पंक्चुअल, ओके, आई एम रियली पंक्चुअल एंड आई ऑलवेज डू माई जॉब इन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करने, टीम वर्क और लीडरशिप, तो दीज आर द स्किल्स। अब आ जाए को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। मैंने जैसे बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी कंपनीज़ में, बहुत सारी जॉब्स में डिमांड होती है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर के जो लॉजिक्स और जो प्रोग्रामिंग और बड़ा ड्राई जॉब करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है फ्रेश होना, कि उन्हें बैडमिंटन खेलें, स्नूकर खेलें या कोई और ऐसी गेम खेलें जिससे वो फ्रेश हों, या कोई और एक्टिविटीज़ हों, फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, स्विमिंग है, जिम है, तो और दूसरी बात है हाइकिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनको घूमने फिरने का, हाइकिंग है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंसान को एक पॉजिटिव इंसान बनाती है। इसलिए यूरोप, अमेरिका और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज दे डिमांड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के। इंसान की को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, तो जैसे यहाँ पर है पार्टिसिपेंट डिबेट्स, स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं, पर्टिकुलरली फुटबॉल, क्रिकेट खेलते हैं हम पाकिस्तानी। साइंस एग्जीबिशंस का बड़ा शौक है, रीडिंग बुक रीडिंग, ये भी आपका हो सकता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। स्विमिंग है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, दीज आर ऑल स्पोर्ट्स आर कनेक्टेड। फिर दोबारा रेफरेंस जाएगा लास्ट में। तो ये थी सीवी, और बेसिकली ये जो मैंने 2-3 सीवी आपको अभी शो की हैं, ये बेसिकली आपके 12th के स्टूडेंट हो तो इंटरमीडिएट के हिसाब से की हैं, लेकिन आपको वहाँ एज अ बैचलर ग्रेजुएट अपने आप को फर्जी शो करना पड़ेगा। लेकिन यू डोंट मेंशन द नेम, एग्जैक्ट नेम, यू फर्जी नाम डालना है, यू डोंट मेंशन द एग्जैक्ट एड्रेस, यू डोंट मेंशन द एग्जैक्ट NIC नंबर, नथिंग, इट वुड बी ऑल अज्यूम करना है। आपने सब फर्जी चीज़ें डालनी है, फर्जी ईमेल आईडी डालना है, फर्जी व्हाट्सएप नंबर डालना है। आपको बस उन जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको पैटर्न के मिलेंगे, उसको कैसे लिखा गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें एडअप की हैं, तो वही मैंने डिस्कस की है कि क्या हो गया आपकी जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसको पर्सनल डिटेल्स कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, MN ऑब्जेक्टिव आएंगे कि आपका मकसद क्या है इस कंपनी का। उसके बाद आपका एकेडमिक या एजुकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो है ना जॉब, वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या जॉब एक्सपीरियंस भी कहते हैं या वर्क प्लेस भी कहते हैं। तो जो भी हेडिंग आपको सूट लगे वो लिख दें, और उसके बाद आपका आएगा स्किल्स, और उसके बाद एंड में आ जाएगा रेफरेंस। तो दिस इज आवर टुडेज क्लास। वी डिस्कस yesterday covering letter and today we discussed in detail curriculum vitae. अब inshallah hope कि I will get chance next day or next week, then we will continue the CV, different professional CVs as well I will show you. ये आज आपका स्टार्टअप था तो इसलिए मैंने एक सिंपल CV बताई ताकि आपको उसको बनाना आ जाए। I hope you would try at home, and thank you very much in our Be Connected, and thank you very much you are taking our classes, and thank you very much to connect to our Benazir Bano program. Thank you very much.